Good morning, dear students. Hope you all are well and doing good. So, in today's class, we'll be starting our subject for this semester, which is environmental engineering. And in today's class, we'll have a short introduction about the subject, telling the entire syllabus of the subject and its importance, right? So, the subject which I'll be teaching you is environmental engineering first part, right? And in this subject, basically, what we'll be studying, so you must be thinking that the environment which you have studied in your first year, maybe it is that, but no, it is not that subject. In this subject, basically, we will study about raw water, right? So, it is the engineering of raw water. बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, दिस सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. मींस इसको जब हम पढ़ते हैं तो इनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और इसको ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट तब बनता है. तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑल अबाउट रॉ वाटर एंड द सेकेंड पार्ट इज अबाउट वेस्ट वाटर एंड द थर्ड पार्ट इज अबाउट air and noise pollution and solid waste disposal. So this entire subject is divided into 3 main categories. The first category is that of raw water, the another category is that of wastewater, and the third category is air and noise pollution and solid waste disposal. In this semester, we'll be studying entirely about the raw water and air and noise pollution. So these 2 topics will be covered in this particular semester. And in the next semester, which will be your environmental engineering second part subject, in that we'll be covering about wastewater and solid waste disposal. So इस तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट completely आपका इस 6 semester के बाद environmental engineering आपका complete होगा. So this semester we'll be concentrating on raw water. If talking about the importance of this subject, so basically जो आपके 2 main competitive exams है that is GATE and ESE, right? Engineering services. So in GATE it has a very huge importance जो क्योंकि इसके question जो आता है वो आता है around 13 to 15 marks every year. 13 to 15 marks या 10 to 15 marks तो आप लगा के चलिए. Out of 100 GATE exam is of 100 marks and out of 100 13 to 15 marks are being covered by this subject. So it is a major portion because entirely you are having about 13 to 14 subjects. And अगर compare करें कि हर subject का weightage निकाले तो soil mechanics and environmental engineering have the greatest weightage और every year they have a question of around 13 to 15 marks. राइट तो सॉइल और एनवायरमेंट का आपका बहुत मेजर पोर्शन रहता है. अगर ईएससी में हम बात करें तो 40 to 50 मार्क्स का ईएससी में भी आपके क्वेश्चंस किससे आते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड स्पेशली विद रेफरेंस टू गेट बिकॉज गेट में सिर्फ 100 मार्क्स क्वेश्चन पेपर में आपका 13 to 15 मार्क्स को अबाउट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आता है. सो इट इज अ वेरी ह्यूज नंबर, राइट? So we need to study this subject very deeply and it is a very simple subject, but you just have to pay the attention and you just have to regularly visit the lectures and have to regularly practice the questions. So now let's start about the subject that is environmental engineering first, in short raw water engineering. So as I told you, in this semester we will be just focusing on raw water. Now you must be thinking, what is this raw water? What do you mean by raw water? Simply आपने एक term सुना है water और एक हम यहाँ पे बोल रहे हैं raw water. So raw water is that water which has not been given any treatment, right? Which has not been provided any type of treatment, or in other words, and to be very precise, artificial treatment. तो जिस पानी को, जो आपके पास पानी का सैंपल है, अगर उसको हमने कोई भी आर्टिफिशियल मींस अपनी तरफ से हमने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया है, देन दैट वाटर सैंपल इज कॉल्ड एज रॉ वाटर. However,
जो रॉ वाटर है मे बी उसमें नेचुरली ट्रीटमेंट हो सकता है। अब नाउ नेचुरल ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो भी वो कोई वाटर होता है वो किसी सोर्स से हम विड्रॉ करते हैं, राइट। तो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे कि आप कह सकते हैं मे बी रिवर और मे बी ग्राउंड वाटर, ये सारे लेक्स हो गए, ये डिफरेंट आपके सोर्सेज है जहां से आप पानी को विड्रॉ करते हैं। तो वंस वी विड्रॉ द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज और हमने अगर इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है, देन इट विल बी कॉल्ड एज रॉ वाटर। लेकिन इस पानी में नेचुरल ट्रीटमेंट हो सकता है। नेचुरल ट्रीटमेंट मतलब जो ट्रीटमेंट नेचुरली फोर्स से हो रहा है नेचर की तरफ से, उसको हम कहते हैं नेचुरल ट्रीटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर जो पानी रिवर में प्रेजेंट है, तो वाइल फ्लोइंग इन द रिवर जो इम्प्योरिटीज होती है रिवर वाटर में दे टेंड टू सेटल डाउन अराउंड द बेड्स, जो रिवर बेड्स होते हैं, क्योंकि वहां पे आपका फ्लो कम होता है एज कम्पेयर टू जो मेन रिवर बॉडी है। तो जब फ्लो की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो यू मस्ट हैव बीन स्टडीड इन योर साइंस सब्जेक्ट्स आल्सो ड्यूरिंग स्कूल टाइम, दैट जब भी किसी पानी को किसी कंटेनर में रखा और उसके हम वेलोसिटी जीरो कर दें, तो जो उसमें इम्प्योरिटीज होंगी दे विल टेंड टू सेटल डाउन। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेडिमेंटेशन, राइट। तो ऐसी रिवर वाटर बॉडी में भी क्या हो सकता है, अराउंड द बेड जहां पे फ्लो कम होता है वेलोसिटी, वहां पे इम्प्योरिटीज नीचे सेटल कर सकती है। तो इस तरीके से उसमें नेचुरली सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है। हमने फ्लो को नहीं रोका। आर्टिफिशियल सेडिमेंटेशन वो होता है जिसमें हम फ्लो को खुद रोकते हैं बाय प्रोवाइडिंग इट एन ऑब्स्ट्रक्शन। बट इन दिस नेचुरली रिवर बेड में जो फ्लो जब कम हो जा रहा है, तो वहां पे पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी है दे टेंड टू सेटल डाउन, एंड इस तरीके से पानी को नेचुरली एक ट्रीटमेंट मिल रहा है जिसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। तो दैट इज वाई रॉ वाटर में मे बी देयर मे बी नेचुरल ट्रीटमेंट, बट no artificial treatment is given to that sample, and that is why it is called as raw water. Once we provide a treatment to the water, then it will be called as treated water. So in this subject, we will be just studying about the raw water, its characteristics and how it is treated. So if we draw a framework कि हम किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे, राइट, इस सब्जेक्ट में पढ़ते हुए, तो एक अगर हम सिंपल फ्रेमवर्क बनाए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि रॉ वाटर कहाँ से आता है, तो इट इज विड्रॉन फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स। तो लेट्स ड्रॉ अ फ्रेमवर्क ऑफ दिस। So there will be first a source of water. There will be first a source of water. Now इस source से आप क्या करेंगे, आप पानी को withdraw करेंगे। तो पानी जो withdraw होगा that will be through with the help of some pipe. तो let us name it as pipe first. किसी भी pipes के through आप withdraw करेंगे water को, right? Now अब ये जो पानी है this will be pumped to treatment plant. Now why treatment plant? आप सोच रहे होंगे क्यों हमने टीपी मीन्स ट्रीटमेंट प्लांट, हमने पानी को सोर्स से विड्रॉ किया और हम डायरेक्टली कम्युनिटी को सप्लाई करें। देखिए स्टूडेंट, बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग, मतलब किसी भी जगह पे आपको पता है जो भी इंटायर कम्युनिटी रहती है, इट रिक्वायर्स वाटर फॉर इट डिफरेंट यूजेस। हमको डेली लाइफ में अपने पानी की डिफरेंट यूजेस की जरूरत पड़ती है और ये पानी हमें कहीं ना कहीं से सप्लाई होता है। अब अभी तक तो आप सोचते थे सप्लाई होता है, बट नाउ एज ए सिविल इंजीनियर you will come to know that how this entire system is designed, that how the entire water is sent to us, किस तरीके से वो हमें सेंड किया जाता है। तो बेसिकली इसलिए हम अब ये पढ़ेंगे, तो अब आप इसे टेक्निकलिटी से भी जानेंगे। तो सबसे पहले आपने सोर्स ऑफ वाटर से पानी विड्रॉ किया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब हम इसे डायरेक्ट कम्युनिटी को भेजेंगे, लेकिन इसके बीच में एक प्रोसेस भी होता है विच इज कॉल्ड एज ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो इसका मतलब सोर्स के बाद पानी को जब हमने पंप कर दिया, पंप करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, ट्रीटमेंट प्लांट में सेंड करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ वाटर से पानी को विड्रॉ करेंगे, फिर उसको पंप करेंगे। पंप करने की जरूरत यहाँ पे इसलिए पड़ गई बिकॉज जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज नॉर्मली सिचुएटेड एट अ लोअर लेवल एज कम्पेयर टू अवर कम्युनिटी जहां से सप्लाई करना है या फिर ट्रीटमेंट प्लांट। तो जब आपको पता है पानी को एक लोअर लेवल से हायर लेवल में हमें ले जाना होता है, सो वी नीड टू पंप इट। तो सबसे पहला कॉम्पोनेंट आपका सोर्स हो गया, देन पंप्स, देन हो गया आपका ट्रीटमेंट प्लांट। तो पानी को इसके बाद हम ट्रीटमेंट प्लांट में सेंड करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस ट्रीटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। सो बेसिकली जिस भी डिफरेंट यूजेस के लिए हम पानी को यूज करते हैं, जैसे कि आप अपने घर में पानी को जो कॉमनली आपके यूजेस हैं, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, वॉशिंग ऑफ यूटेंसिल्स या एनी अदर यूजेस, सेम इंडस्ट्री में भी पानी के डिफरेंट यूजेस होते हैं। तो इन सारे डिफरेंट यूजेस के लिए पानी को एक सर्टेन क्वालिटी पैरामीटर फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ स्टूडेंट इज टेकिंग एडमिशन
to a particular college for a particular course, then he or she must have a particular percentage, यानी एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, राइट? जैसे आपने भी एडमिशन लिया होगा तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज्यादा आपकी परसेंट होनी थी. Same is that for water, that to use a water for different, for a particular use, it need to fulfill some particular quality parameters. अगर उसमें वो क्वालिटीज है देन वेल एंड गुड, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि जिस सोर्स ऑफ वाटर से आपने पानी को विड्रॉ किया है उसमें आपको पानी सेम क्वालिटी से मिले जो आपको चाहिए, राइट? बिकॉज सोर्स ऑफ वाटर में तो पानी नेचुरली आ रहा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, और पानी की भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, तो वो सारी क्वालिटीज फुलफिल कर रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी. सो व्हाट विल हैपन, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको अपने घर में कपड़े धोना है तो उसके लिए आपको जो पानी चाहिए उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए. तो पहले बात तो उसमें बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में सोचे तो उसमें हार्डनेस कम होनी चाहिए, लेकिन ये अभी आपको नहीं पता, अभी आपने सब नहीं पढ़ा है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे एक नॉर्मल, अगर आप एक जनरल लेवल में सोचे, एक सिविल इंजीनियरिंग की तरह नहीं, आप सिंपल सोचे कि अगर आप कपड़े धोना है तो पानी कैसा होना चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, राइट? साफ मीन्स उसमें कलर्ड वाटर वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर भी एक क्वालिटी ऑफ वाटर है, तो वाटर शुड नॉट बी कलर्ड, क्योंकि अगर आप कलर्ड वाटर से पानी कपड़ों को धोएंगे तो वो बेसिकली साफ नहीं होंगे, तो आपका पर्पस जो आपका यूज था पानी का वो फुलफिल नहीं हो पाया. तो दैट इज वाई जो ये क्वालिटी है कि पानी फॉर वॉशिंग क्लोथ्स दैट शुड नॉट बी कलर्ड. सो ये जो अनडिजायरेबल क्वालिटी है दैट इज कलर ऑफ वाटर, इसी तरीके से बहुत सी अनडिजायरेबल क्वालिटीज हो सकती हैं, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द यूज फॉर विच वाटर इज पुट. जिस यूज के लिए हम पानी को कर रहे हैं उस यूज के अकॉर्डिंग कुछ भी उसके क्वालिटी पैरामीटर्स हो सकते हैं और बहुत सी अनडिजायरेबल क्वालिटीज हो सकती हैं. सो ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, यही जो सारी अनडिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं इनको रिमूव किया जाता है. एंड ऑल्सो इफ देर इज एन डिजायरेबल क्वांटिटी इन वाटर, मतलब अनडिजायरेबल को तो आपने हटा दिया, लेकिन अगर कोई डिजायरेबल क्वांटिटी है, मतलब जो क्वालिटी है, सॉरी, जो कि आपको पानी में चाहिए और वो सोर्स में प्रेजेंट नहीं थी, तो उसी क्वालिटी को हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे. तो ट्रीटमेंट प्लांट में दोनों चीज होती है, एडिशन होता है डिजायरेबल क्वांटिटी का, क्वालिटी का, और रिमूवल होता है अनडिजायरेबल क्वालिटी का. बेसिकली हम फोकस करते हैं जो अनडिजायरेबल क्वालिटीज होती है उनके रिमूवल पे ही फोकस होता है. सो ट्रीटमेंट प्लांट में आपके ये दो फंक्शन होंगे. तो सबसे पहले आपने सोर्स से पानी को विड्रॉ किया, फिर उसे पंप करके ट्रीटमेंट प्लांट में ले गए, वहां पे हमने पानी से अनडिजायरेबल क्वालिटी अगर प्रेजेंट है पानी में तो वो हटा दी, और अगर डिजायरेबल क्वालिटी नहीं प्रेजेंट है तो वो ऐड कर दी. ये भी, ये जो पंप से जब आपके वो जो जाएंगे ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो सपोज दिस इज पाइप सेकेंड, सॉरी पाइप फर्स्ट, इसका नाम भी पाइप फर्स्ट ही रखेंगे हम, दिस इज पाइप फर्स्ट. नाउ फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट प्लांट, अब आपका पानी ट्रीट हो चुका है, नाउ इसको हम क्या करेंगे, कंज्यूमर्स को सेंड करेंगे, राइट? लेकिन कंज्यूमर्स को जब आप पानी सप्लाई करते हैं, आपने देखा होगा आपके घर में जब भी पानी आता है दैट इज फॉर अ पर्टिकुलर टाइमिंग, ड्यूरिंग मॉर्निंग, देन ड्यूरिंग इवनिंग या ड्यूरिंग डे टाइम. बहुत कम जगह पे 24 आवर्स पानी का सप्लाई होता है. बेसिकली क्या होता है कि मॉर्निंग में कुछ टाइम के लिए पानी आता है, देन दिन के टाइम पे, देन रात के टाइम पे. तो फिर क्या होगा, उस पानी को आप तो सोर्स से कंटिन्यू विड्रॉ कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं पानी को, देन वो आगे अगर आप उसे पास नहीं कर रहे हैं लोगों को, देन इट नीड्स टू बी स्टोर्ड समवेयर. तो अब हम उसको कहाँ स्टोर करेंगे, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर वाटर सो दैट इट मे बी सप्लाइड टू द पब्लिक लेटर, दैट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज सर्विस रिजर्वॉयर. बेसिकली आपने देखा होगा अपने घर में कम्युनिटी के आसपास बड़े बड़े पानी की टंकी होती है, वाटर टैंक्स, यही आपके सर्विस रिजर्वॉयर होते हैं. तो दे मे बी ओवर द ग्राउंड ऑल्सो एंड दे मे बी अंडरग्राउंड ऑल्सो. तो ये आपके सर्विस रिजर्वॉयर्स होते हैं, राइट? इसके बाद नाउ सर्विस रिजर्वॉयर्स के बाद अगेन पानी विल बी, वाटर विल बी ट्रांसफर्ड. यहाँ पे मैं पाइप सेकंड लिख रही हूँ, इन सब का नाम पाइप 1 है और ये पाइप सेकंड है, ऐसा क्यों हम आगे पढ़ेंगे. तो पाइप सेकंड से फाइनली जो वाटर है, अब पानी ट्रीट भी हो चुका है, स्टोर भी कर दिया है, अब बस उसे सप्लाई करना है. तो द वाटर इज सप्लाइड टू द कम्युनिटी थ्रू अ प्रॉपरली डिजाइंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नाउ इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हेल्प से हम पानी को क्या करेंगे, सप्लाई कर देंगे टू द डिफरेंट कम्युनिटी. और ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट सिंपल अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड पाइप्स विच पास थ्रू द एंटायर सिटी. पूरी सिटी से जो पास होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ पाइप को, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फाइनली पानी जिसके लिए हमने उसे सोर्स से उठाया था यूज के लिए,
वो उसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे कि सबसे पहले देयर विल बी अ सोर्स ऑफ वाटर, फ्रॉम दैट the water will be pumped to the treatment plant, and after treatment the water will be stored in the service reservoirs, and then after that it will be finally distributed to the community with the help of distribution system. और ये सारे सिस्टम जो है ये कनेक्टेड रहेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ डिफरेंट पाइप्स। ये 3 पाइप हमारे एक ही टाइप के होते हैं, दैट इज वाई इनको हमने एक नाम रखा है। ये वाला पाइप थोड़ा डिफरेंट होता है, तो दैट इज वाई इट इज बीइंग नेम्ड एज पाइप सेकेंड, क्योंकि अभी हम इसके बारे में आगे जब लेक्चर्स में पढ़ेंगे तो फिर हम इसको इसी से डिनोट करेंगे। सो इफ टॉकिंग अबाउट कि बेसिकली जब भी आपको इंटायर वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है, राइट, वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी इंजीनियर समवेयर आप कभी भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में इंजीनियर बनेंगे हम, और बेसिकली अगर आप किसी वाटर रिलेटेड डिपार्टमेंट में इंजीनियर बनते हैं तो वहां पे आपका यही काम होता है कि यू नीड टू डिजाइन अ प्रॉपर वाटर सप्लाई स्कीम फॉर द एंटायर सिटी। तो व्हाट विल बी योर, मतलब आप सबसे पहले क्या सोचेंगे कि सपोज आपको बोल दिया कि आप इस सिटी में रह रहे हैं, नाउ यू हैव टू डिजाइन अ वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर दैट सिटी। तो सबसे पहले आप किस चीज के लिए सोचेंगे, आप खुद सोचिए अपने दिमाग में। तो द फर्स्ट थिंग विच यू विल लुक आफ्टर इज द डिमांड ऑफ वाटर ऑफ दैट सिटी। आपके मन में भी सोर्स आया होगा, लेकिन सोर्स से भी पहले सबसे पहले जो चीज आपको बनानी है आपको ये पता होना चाहिए कि वो लोगों को कितनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप डिफरेंट यूनिट्स डिजाइन करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए करेंगे ना वाटर के, तो वो वॉल्यूम क्या है, तो वो पानी की कितनी डिमांड है उस सिटी की। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये है डिमांड ऑफ वाटर। तो हम इसी तरीके से टॉपिक भी पढ़ते जाएंगे जिस तरीके को नेचुरली लाइफ में अगर आप डिजाइन करें एक वाटर सप्लाई सिस्टम को। तो फर्स्ट इज डिमांड ऑफ वाटर। तो आप सबसे पहले आपको पानी की डिफरेंट डिमांड्स पता होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि लोगों को कितनी डिमांड ऑफ वाटर है। Once you get to know the demand of water of that city, now you will look for a source of water. अब आप किसी सोर्स ऑफ वाटर को देखेंगे जिससे कि आपको उतना पानी मिल जाए, राइट, मतलब जितनी आपने उस सिटी की डिमांड निकाली, अब आप देखेंगे कौन सा ऐसा सोर्स है जो इतना पानी हमें प्रोवाइड कर सकता है। आफ्टर वी हैव टेकन द सोर्स ऑफ वाटर, अब आपने भी यहाँ पे पढ़ा था सोर्स ऑफ वाटर के बाद पानी जाएगा ट्रीटमेंट प्लांट में, और ट्रीटमेंट प्लांट में हमने पढ़ा कि अनडिजायरेबल क्वालिटीज को हटाते हैं और डिजायरेबल क्वालिटीज को ऐड करते हैं। लेकिन जब तक अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो हाउ डू यू नो कि विच क्वालिटी इज अनडिजायरेबल एंड विच क्वालिटी इज डिजायरेबल। सो फॉर दैट यू नीड टू स्टडी अबाउट द क्वालिटी ऑफ वाटर। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे दैट विल बी क्वालिटी ऑफ वाटर। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी की क्वालिटी डिफरेंट क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये भी हमारा एक टॉपिक ऑफ स्टडी रहेगा। वंस आपने क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ लिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है कि कौन सी क्वालिटीज डिजायरेबल है और कौन सी अनडिजायरेबल, और कितने लेवल तक कौन सी क्वालिटी डिजायरेबल है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी क्वालिटी हर वैल्यू में अनडिजायरेबल हो, उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट होती है कि जिसके ऊपर वो अनडिजायरेबल हो जाती है। ये सब आपको समझ आ जाएगा जब हम क्वालिटी ऑफ वाटर पढ़ेंगे। तो इसीलिए उसी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, उसको उसकी उस लिमिट तक लाते हैं। या तो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो कंप्लीटली अनडिजायरेबल होती हैं, तो उसको तो हम रिमूव ही कर देते हैं। कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो एक पर्टिकुलर रेंज तक अनडिजायरेबल नहीं रहती, उस रेंज को अगर एक्सीड करें तो अनडिजायरेबल होती है। तो इसलिए हम इस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में यही करते हैं, या तो कंप्लीटली उसको रिमूव कर देते हैं या फिर उसको उसकी रेंज तक लाते हैं जिस रेंज में वो अनडिजायरेबल नहीं है। तो वन टॉपिक विल बी अवर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वी विल स्टडी अबाउट द सर्विस रिजर्वॉयर, किसके क्या डिफरेंट फंक्शंस है और फिर इसको किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आफ्टर सर्विस रिजर्वॉयर्स वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पाइप्स, राइट, पाइप्स रिक्वायर्ड टू कैरी वाटर। ये जो अभी हमने सारे पाइप ऊपर लेबल किए, हम इनको पढ़ेंगे, पाइप्स रिक्वायर्ड टू कैरी वाटर। तो ये इस तरीके से हम इन पाइप्स को पढ़ेंगे जो डिफरेंट पाइप्स हैं। एंड देन लास्ट विल बी अवर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फाइनली जब पानी ट्रीट हो चुका है, स्टोर हो चुका है, फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है और कैसे पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इंटायरली जो आपका सब्जेक्ट है उसमें यूनिट 1 to 4 में आप ये सब चीजें ही पढ़ेंगे मेजरली। और देन लास्ट जो यूनिट 5 है वो है हमारी एयर एंड नॉइज पोल्यूशन के बारे में, राइट। तो जो हमारा मेन जो है टॉपिक इस सब्जेक्ट का वो आपका
यूनिट 1 to 4 में ही कवर हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें भी अगर आप देखें तो हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है क्वालिटी ऑफ वाटर और ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। मेजरली क्वेश्चंस आपको जो गेट एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो इन टॉपिक से ही मिलेंगे। हाउएवर ऑल अदर टॉपिक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, बट द relative importance of these two topics is large as compared to these other topics. So we need to be very attentive during these topics in addition to this topic also, right? So basically हम इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे। आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट, आपको जो एक थोड़ा सब्जेक्ट का आइडिया मिल चुका है कि what we study in this subject and what will be our framework while studying the subject. So this is enough for today's lecture. We'll start our first topic in the next lecture. So I hope this all is clear to you. If there is any doubt, you may ask me. Thank you.